बातचीत स्टार्ट करते हैं तो लोडिंग एक आ गया। तब उसके भी थोड़े नज़ारे वज़ारे देखेंगे अभी तो। अरे ज्यादा हो एक दो जाएगा मिनट यार। टोटल। आ गया, स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये चीज लिख, ये मत रिकॉर्ड करना यार, ये काट देना नहीं सब नहीं, कुछ। ये काट देंगे, ठीक है, ये तो काट देंगे। तो इसके आगे इंट्रो इंट्रो तो मैं कर लूंगा रिकॉर्ड, कोई इशू नहीं है। Hey, Anav here from Coding Blocks with a new video after a long break, I guess. So Android के course के कुछ videos they have been coming, but they were actually shot some time back. So with these, so for the last I think 4 or 5 years, I have been working 7 days a week, 10, 12 hours every day. That's how it has been. But ऐसा होता था कि हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं घूमना हो जाता था इंडिया के अंदर। कोडिंग क्लास कुछ वर्कशॉप्स के लिए कहीं जगह जाना होता। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स भी कवर हुए हैं इन द लास्ट 3-4 years, एंड 20 countries also in the last 4 years I've been going for international conferences. So it's fun, right? So every 2-3 months there's a trip, and that's kind of keeps the cycle going. 2020 obviously it's been all staying at home and working on job wala stuff, working on content, blogs, open source stuff. So I think I finally saw what burnout is. I have never faced burnout before, but I did. And there was a phase where I felt like कि नहीं, मुझे videos नहीं बनाने हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, just want to call over my friends, have party, and cook food. I did that as well. कोई अगर मेरा Instagram follow करता है तो you might have seen some of my cooking photos and videos as well. But yeah, so I was taking a bit of a break in life, I guess, थोड़े time के लिए, and as a result of that, few of the things which I did announce, some of the short courses which were supposed to be ready by now, they're taking a little bit more time. मॉक स्टार्ट हमें शुरू करना था 1 नवंबर को, नहीं हुआ, इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर नाउ. आई विल रियली स्टार्ट दैट. I will make a video on that really, really soon. I will go through all the ideas that had come and we will schedule the interviews. We'll do it during the winter break. ठीक है. But today this video is about so ये जो time था when I wasn't actually much active on YouTube and you weren't seeing me a lot. I had shot a few podcasts and interviews with some friends and some great people. So एक आपने शायद देखा होगा ध्रुव भैया के साथ I had posted. He is the engineering manager at Shuttle. So I got time to edit and post that one. But I also shot 3-4 more interviews which I did not get time to edit and post. So today the video this I'm putting it out here. It was shot I think 2 months back with Deepak Bhaiya. Deepak Bhaiya काफी फेमस है कोडिंग ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल वगैरह के ऊपर, क्योंकि उनका मास्टरिंग रिकर्शन का एक वीडियो है जो आई थिंक हमारा सेकंड हाईएस्ट मोस्ट व्यूड वीडियो है हमारे चैनल का. एंड ही इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मेंटर्स हु जॉइंड कोडिंग ब्लॉग्स आफ्टर मी एंड प्रतीक भैया. एंड उनसे मैं मिला था, मेरे को अभी भी याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एक टॉक देने गया था ओपन सोर्स के ऊपर, ऐप डेवलपमेंट के ऊपर डीटीयू में, इन वन ऑफ दोज एसपीएस हॉल्स. डीटीयू में जो है वो जानते हैं बिग एसपीएस 3-4 किसी एक हॉल में से है, और काफी सारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे. Deepak stood up and asked the maximum number of questions during that, and I really like that was on my mind, like अटकी रहती है. And then he got in touch with Pratik Bhaiya, and when Pratik told me that there's this guy who wants to give a demo class for C++, Deepak came and I was like, oh, this is the guy who was asking me all those questions in that session. So Deepak Bhaiya joined us. He worked with us for I think almost 2 years, and in that time uh, he not only worked, like he was obviously one of the best launchpad and data structures C++ mentor we had, but apart from that he also had so many ideas on doubt resolution, the tool that we are building, and a lot of those things. He had a lot of inputs on that. After that he went and worked for a while at SMC, which is a high frequency trading firm, and all of his C++ knowledge was I think really put to great use there, where he worked on actual network tools, hardware level coding, on systems which are used for very low latency. बहुत ही कम टाइम के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो करने होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म को, तो उसके लिए वो कस्टम हार्डवेयर यूज करते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं. तो इस टाइप की चीजों पर उन्होंने काम किया. आई थिंक मस्ट हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर हिम. एंड नाउ ही हैज डन अ रियली बिग थिंग. ही हैज जस्ट जॉइंड फेसबुक. तो वो पैंडेमिक के बीच में जब फ्लाइट वाइट नहीं चल रहे थे उसके बीच में somehow he went to London. He had shifted there, and ये वीडियो जब हमने शूट करी थी तो he was still staying at the hotel where they had put up all the employees. अभी उनको घर वर मिल गया होगा, रह रहे होंगे. We will get those updates from him as well.
But so I shot this video about his experience, and let's just go and hear from him about his experience, right? दीपक भैया को पकड़ के लाए हैं जो कि बहुत सारी मीटिंग में बिजी थे तो कैसा मतलब शेड्यूल कैसा चलता है आजकल, मतलब जब से स्टार्ट किया तूने तो मतलब सुबह से लेके मतलब घर से ही हो रहा है सारा काम तो? हाँ, अभी तो घर से हो रहा है। लाइक इट फील्स क्रेजी कि मैं इंडिया से आया टू डू वर्क फ्रॉम होम इन लंदन। लेकिन जो सारा स्केड्यूल यही रहता है कि मेरा वैसे यूजुअली 9 to 5 ही होता है, बट फीवर है, मीटिंग्स होती हैं एंड बूट कैंप चल रहा है, तो आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, अ लॉट ऑफ इंटरनल कंटेंट, एंड हमें टास्क दिए जाते हैं। लाइक हमारा कोड सीधा प्रोडक्शन में जाता है। डे 1 पे आई रोट समथिंग दैट एक्चुअली वेंट इनटू प्रोडक्शन। मतलब आप लोग उसको देख रहे थे फेसबुक में, तो छोटे-छोटे माइनर बग्स होते हैं। लाइक दोस फीचर्स आर वो ट्रिवियल इतना होते हैं कि एंड यूजर एकदम से उसको नहीं अफेक्ट होता, बट इफ यू गेट इनटू द सेटिंग्स एंड ऑल, तो वहाँ के फीचर्स हम लोग चेंज किए हैं। सही काफी इंटरेस्टिंग। तो एक्चुअली ये चीज को लेके एक बार बात करते हैं। तो ये मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो आई थिंक जो ऑडियंस देख रही होगी उनको थोड़ा आइडिया लगेगा इसके लिए यूके क्यों जाना पड़ा। मतलब मेरे को एक्चुअली यूरोप से कुछ ऑफर्स थे, मेरे को पता है क्यों जाना पड़ा, बट ये तू एक बार एक्सप्लेन करके इसके लिए घर से ही काम करना, वहां जाके क्यों करना पड़ रहा है फिर? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मैंने पूछा था। लाइक मैंने अपने रिक्रूटर से ही पूछा एक्चुअली। जो जुलाई 2021 तक फेसबुक ने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शनल कर रखा है। मोस्ट ऑफ द टीम्स कैन डू वर्क फ्रॉम होम टिल जुलाई 2021, और मैं सितंबर में आया, तो लाइक 9 महीने मुझे एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम इन लंदन करना है। बट जहां तक मेरे को समझ में आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स लॉज। हमारा मैं अपना टैक्स लॉ तो मेंटेन कर लूंगा खुद के टैक्स के, लेकिन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शायद इंडिया में नहीं है, या देयर आर सर्टेन कॉर्पोरेट टैक्स लॉज जो फेसबुक अभी इट कैन नॉट, लाइक इट डिड नॉट हैव, फेसबुक डजंट हैव दैट क्लैरिटी। बट गूगल में ऐसा होता है, गूगल फेसबुक इंडिया कैन पे यू इफ यू आर इन इंडिया, बट फेसबुक यूके कांट पे यू इफ यू आर इन इंडिया। तो तेरे को वहां जाके वर्क वीजा चाहिए होगा ताकि वो वहां तेरे को पे कर सके। एग्जैक्टली, और मोस्ट ऑफ द बहुत ही मेजर क्राउड इंडियंस का फेसबुक लंदन में है। तो अगर बहुत बड़ा क्राउड दूसरी कंट्री में, लाइक इफ a major portion of the crowd of the if the major portion of the workforce is working from some other country, तो जिस उस सॉइल को पैसा देना पड़ता है। तो अभी फेसबुक के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं, बट गूगल इज एक्चुअली डूइंग, so Google is actually around this thing at least for 2 to 3 months. अच्छा सही है। तो छोटा सा एक बार इस चीज़ पे टच अपॉन करेंगे कि मतलब फेसबुक जाने का मतलब बना कैसे अभी। जैसे हम पहले तो पूरी जर्नी के बारे में करते हैं आगे बड़े में बात, बट फेसबुक जाने का कैसे अचानक से बना, और फिर क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू देने का, जाने का क्या प्रोसेस रहा पैंडेमिक के बीच में यूके जाना? Okay. हाँ, तो एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं लंदन जाऊंगा। मैं एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में ही सोच रहा था कि आई बी लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मेरे पास और भी कंपनीज के ऑफर थे, एनसीआर के काफी अच्छे ऑफर्स थे। सो बट समहाउ आई केम टू नो कि फेसबुक में अप्लाई कैसे करते। Two ways we can apply through referrals, which I would recommend, and other ways you can directly apply through the career web page. But I applied through career web page, तो मेरा resume shortlist हो गया। So then मैंने तो ऐसे ही resume डाला था, and then after like within a week or two they give me a call कि दीपक आपका resume shortlist हो गया है। I was already prepared because I was interviewing with other companies, and तो preparation के टाइम पे राउंड्स अच्छे होते चले गए, 5 राउंड हुए थे। तो 3 डीएस एल्गो के, एक बिहेवियरल का और एक सिस्टम डिजाइन, वो अच्छा था, काफी अच्छा राउंड था वो। ये 5 राउंड के बाद देन दे गेव मी एन ऑफर इन ऑलमोस्ट जून एंड विद द जॉइनिंग डेट ऑफ 1 सितंबर। तो जून जुलाई में क्योंकि ट्रैवल अलाउड नहीं था तो वी कैन नॉट ट्रैवल, बट सितंबर अगस्त से जुलाई 16 या 17 से रिपैट्रिएट फ्लाइट्स चालू हो गई थी because they became functional, so आना पड़ा। then I came almost on 31st of August. I came in London. So this is how the whole process went. Like I just applied and it just happened. Otherwise I was planning to join some companies in Delhi NCR. अच्छा So क्या पास रहने का इंटेंशन था ओरिजिनली? sorry,
घर के पास ही रहने का इंटेंशन था ओरिजिनली? हाँ, मेरा घर के पास ही रहने का इंटेंशन था। तो क्योंकि आई लिव माई विद माई फैमिली एंड लाइक मेरे को लगता है कि दिल्ली से बाहर क्यों जाना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं दिल्ली में इफ यू एक्चुअली सर्च फॉर देम, ऐसा नहीं है। राइट। बैंगलोर और उनसे रिलेटिवली कम है। लाइक इफ आई एम नॉट अ डेलीआइट, डेफिनेटली मैं बैंगलोर या लंदन प्रेफरेंस रखता, बिकॉज आई एम अ डेलीआइट, तो मेरी प्रेफरेंस वो रहती है। बट अगर कोई वीडियो देख रहा है जो नॉन डेलीआइट है, तो डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज गो टू बैंगलोर और हैदराबाद इफ यू आर इन टेक। लाइक वहाँ का हाँ, ये तो कल्चर है, ये बहुत तो अलग है। करेक्ट, करेक्ट। और ऑलमोस्ट सारे ही मेजर कंपनीज का एक ना एक ऑफिस बैंगलोर हैदराबाद तो होता है। है। एडिशनली गुड़गांव नोएडा वगैरह में होते हैं ऑफिसेज, बट बैंगलोर हैदराबाद में तो सबके ऑफिसेज या होते ही एग्जैक्टली। सही है। तो अच्छा, और ये मतलब क्या कहते हैं, सारे क्वारंटाइन और कोविड वगैरह के बीच में जाने का क्या एक्सपीरियंस रहा, और अभी मतलब कहाँ पे जाके रुका है, वहाँ क्या क्वारंटाइन वारंटाइन किया या क्या सीन है? अच्छा, तो जब मैं आया तो इंडिया में मुझको पूरा मतलब जब भी कोई यूके आता है तो उसको एक टीबी टेस्ट करवाना होता है। तो टीबी ओके। टेस्ट हुआ था मेरा, एक्सरे होता है वो प्रॉपर। तो छोटा सा राइट। टेस्ट होता है। कोविड टेस्ट मैंने कहीं नहीं कराया, जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली की वजह से मेरा वीजा भी बहुत जल्दी बन गया था कंपेयर टू अदर एप्लीकेंट्स। तो हाँ मेरा हाँ। वीजा 20-25 दिन में बन गया था। सो आई हैड माई वीजा ऑलमोस्ट ऑन 20th ऑफ अगस्त। तो वीजा ओके। के बाद 5-6 दिन में मैंने पैकिंग करी। आई गॉट ऑल द बैग्स एंड ऑल। एंड उसके बाद फ्लाइट में गया। फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज एयर होस्टेस भी वो पूरी सब कुछ ढकी हुई पहन थी। वहन के सब लोगों ने सब कुछ पहन रखा था। एंड खाने को भी वो उसमें दे रहे थे, लाइक इट इज ऑल रैप्ड, देयर वाज नो फिजिकल इंटरेक्शन विद एनीबॉडी। तो राइट। बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा था कि ओ यार, मतलब सही टाइम शायद जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। जब यहाँ पर आए, तो जब मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर मुझे फेसबुक ने अकोमोडेशन दे रखा है, तो फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। तो अच्छा। यहाँ पर मैं फर्स्ट 14 डेज के लिए मुझे क्वारंटीन होना पड़ा। तो लाइक एक नए शहर में, एक नए देश में आप आते हो और आप 14 दिन तक यू कैन नॉट मूव आउट। तो 14 डेज मैंने यहाँ रुका एंड देन जिस दिन 15th डे हुआ, आई वेंट टू अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क हियर कॉल्ड रीजेंट्स पार्क। तो काफी हाँ हाँ। ब्यूटीफुल है। इट इज मैनेज बाय द फंड्स ऑफ क्वीन। तो रानी के पैसों से चलता है वो पार्क। काफी सुंदर है। एंड राइट। रिसेंटली जो संडे आया था, तब भी मैं यहाँ पार्क बहुत ज्यादा है। बहुत बड़े हाँ बड़े पार्क है, मोर लाइक फॉरेस्ट है। तो आई वेंट टू ऑन संडे, आई वेंट टू रिचमंड पार्क। एक रिचमंड पार्क गया, और उस रिचमंड पार्क के पास एक सिमेट्री है, सिमेट्री कब्रिस्तान। हाँ। तो मैंने पहली बार इतना बड़ा कब्रिस्तान देखा, लाइक 10-15 हजार वहां पर लोग होंगे। तो इट्स लाइक सो बिग। पूरा एकदम कब्रिस्तान देखा मैंने, पार्क घूमा। तो यही दो चीजें अभी तक मैं गया, एंड इट इज अ गुड एक्सपीरियंस सो फार। राइट, राइट। तो तो अभी जहाँ पे है वो तो आई थिंक थोड़ा लंदन के मतलब बाहर है ना, सबर्ब्स वगैरह में? जो रिचमंड पार्क है वो थोड़ा सबब में है। रीजेंट्स पार्क इज इन द सेंटर, कंप्लीटली इन द सेंटर। आई आई नहीं, पर्सनली कहाँ पे लाइक रह रहा है अभी, रीजेंट्स। कहाँ पे रह रहा है? नो, आई एम लिविंग इन द सेंटर ऑफ सेंट्रल लंदन। ओह, अच्छा अच्छा। तो मेरा ओके ओके ओके। मेरा ऑफिस के हार्डली 5 मिनट्स वॉक पर ही है। तो मैं अच्छा बहुत ही अच्छा अच्छा। सेंट्रल लंदन में रह रहा हूँ। हाँ तो हाँ, नहीं, फेसबुक का ऑफिस जिस एरिया में, वो एरिया तो मैंने देखा हुआ है। अच्छा, उसके पास ही है तो फिर तो सही हाँ, है फिर। बिल्कुल उसके पास नाइस। हूँ। सो सो आई एम इन लाइक फिट्जरोविया। इट्स इन टोट मैप से अगर चेक करोगे तो टोटनहम स्ट्रीट पर, टोटनहम ओ, कोर्ट रोड पर माय सर्विस अपार्टमेंट इज देयर। सही सही सही, नाइस तो नाइस। यहाँ वो जगह मैंने घूमे, मतलब मैं हफ्ते भर के लिए था, लाइक 8 दिन टाइप के लिए था। जब मैं गया था लंदन तो मतलब काफ़ी घुमा था, मतलब काफ़ी कम ही सोया था, मतलब पूरे रात भर भी नाइट लाइफ भी देखा है, दिन भी घूमा है, सारा टाइम ही मतलब एग्जैक्टली। क्योंकि कहीं घूमने जाते हैं तो पूरा टाइम यूटिलाइज ही करते हाँ, थे। मतलब पूरा टाइम ऑप्टिमाइज करना होता है कि भाई सबसे ज्यादा घूम सके। कोविड की वजह से वैसे दिक्कत तो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। बट हाँ, यहाँ पर लोगों को नाइट लाइफ इज, या इट इज देयर। हाँ, यहाँ तो पर मैं पब एक्चुअली उस टाइम है। पे गया था जब विंबलडन भी चल रहा था और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा था। वो तो खैर हमारी मैन इन ब्लू ने थोड़ा निराश कर दिया, फाइनल में वो लोग नहीं थे। बट तो उसकी भी मतलब रात भर वो लगी होती थी, क्या कहते हैं, क्रिकेट की वो फैन शो वगैरह होती है स्टेडियम के बाहर, वो चीज़ें लगी होती है। फिर हम्म। क्या कहते हैं, तो और विंबलडन में भी गया था, तो मतलब मैं तो वही है कि मतलब आई थिंक रात को घर आते आते 2:30-3 बज जाते थे, और बिल्कुल। 5-6 बजते ही सुबह में फिर निकल निकल जाता था। ओके, अच्छे पूरा से यूटिलाइज ऑप्टिमाइज किया था किया मैंने था अपना टाइम, आज। और बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड।
सारे जगह जितने घूम सकते हैं घुमा दो। ओके। हाँ, मुझे लगता है छोटे टाइम के लिए आते तो ज़्यादा घूमते हैं, लंबे समय के लिए आते तो लगता है धीरे-धीरे घूमेंगे। वो अर्जेंसी रहती है घूमने की चीजें। बट हाँ, जैसे मैं कह रहा था मतलब लंदन ही मोस्टली हो पाया, लंदन के थोड़े इर्द गिर्द चीजें हो पाई, बट वो मतलब स्टोन हेंज वोन हेंज तक हो पाया था, बट वो नहीं हो पाया मतलब कि नॉर्दर्न साइड थोड़ा यूके, जाना, वेल्स, वेल्स वगैरह आयरलैंड। और थोड़ा आयरलैंड देखना, स्कॉटलैंड, ये सब चीजें तो उसका एक मैंने मेंटली प्लान बना रखा है कि हाँ ये जगह जाने हैं। कुछ टीवी शोज वगैरह भी देखता हूँ एक्चुअली, एक वेल्स वगैरह की एक टीवी शो है, वहां पे सारे लोकेशंस देखे, तो जाने का प्लान है। आता हूँ किसी ओके, दिन तेरे साथ, चलते हैं, बिल्कुल, घूमेंगे बिल्कुल। सारी जगह। आई हैव प्रॉपर एकदम बढ़िया अपार्टमेंट है यहाँ पर, यू आर ऑलवेज वेलकम। सही है, सही है, तो सही है। तो तो बहुत ही सही है। अच्छा, एक बात बता कि कमिंग बैक टू थोड़ा मतलब टेक वाली चीज़ों पे, तो अभी ये तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, एंड प्रोसेसेस वगैरह काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और इससे पहले आई थिंक मतलब कोडिंग ब्लॉक से कोडिंग ब्लॉक से जब स्टार्ट किया था तो हम लोग मतलब डे वन से चीज़ें खड़ी करी है। करते थे। एसएमसी भी मतलब इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, मिड साइज कंपनी थी। तो व्हाट इज द डिफरेंसेस जो कि देख रहा है, और क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा है मूविंग टू अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से? ओके, हाँ, नहीं, नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि मेरा स्टार्टअप में जो एक्सपीरियंस रहा है और जो यहाँ होने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट है। स्टार्टअप्स में जो भी हम काम करते हैं, लाइक जिनको नहीं पता, आई हैव वर्कड विद कोडिंग ब्लॉक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 years, and then I have worked with a high frequency trading firm for 2 years. So kind of 4 year work experience, 3 years of professional work experience. So कोडिंग ब्लॉक्स में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। छोटे स्टार्टअप में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आपका एक से होता है, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा करनी होती है, ब्रेड्थ पे आप काम करते हो, आपको लोगों से भी बात करनी है, कोड भी लिखना है, कोड को टेस्ट भी खुद करना है, डिप्लॉय भी खुद करना है। में इट इज मोर लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाईली डाइल्यूटेड। तो आपका मैनेजर आपको असाइन करेगा टास्क, उस टास्क को करने के लिए आपको 5 लोगों से बात करनी पड़ेगी, और फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके कोड में बग नहीं होगा, लेकिन आपकी परमिशन से जरूर होगा। तो समझ नहीं आ रहा भाई क्या करे, इतने सारे टूल्स होंगे, बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट होता है। बट आई थिंक उस स्केल पर वो जरूरत भी हो जाती है, अदरवाइज काम होगा ही नहीं। तो Right. विजिबिलिटी का एक इशू मुझे लगता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में राइट टीम चूज करना, राइट विजिबिलिटी लेना इज इटसेल्फ अ स्किल। तो वो शायद मुझे लगता है वो चीजें सीखने को मिलेंगी कि कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और और काफी इंटरेस्टिंग लोग हैं यहाँ पर, मतलब दे आर वेरी गुड प्रोग्रामर्स। सो आई कैन नॉट कंपेयर फेसबुक विद कोडिंग ब्लॉक्स और द एचएफटी व्हिच आई वर्क विद, क्योंकि बहुत ही अलग है। The scale at which Facebook is operating and the scale at which Coding Blocks or the HFT was operating are entirely different. कोई कोई मतलब कोई कोई कंपैरिजन कंपैरिजन ही नहीं नहीं होता। है यहाँ पर। लाइक एक एक सेकंड में आई वुड से पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आता है। सो जो इग्रेशन है वो इतना ह्यूज है, लाइक स्केल दिखता है। तो उस हिसाब से यहाँ लोग भी हैं। बट स्टार्टअप में भी अपना काम करने का मजा है। आई रियली एंजॉयड विद कोडिंग ब्लॉक्स। कोडिंग ब्लॉक्स नहीं होता तो पॉसिबली मैं यहाँ आज होता नहीं, बिकॉज मेरी सेकंड जॉब भी कोडिंग ब्लॉक्स की वजह से ही हुआ था। आई गॉट सम लाइक द स्किल्स आई डेवलप्ड देयर, एंड द स्किल्स आई डेवलप्ड इन एसएमसी एक्चुअली पेव्ड path for this Facebook. So you actually learn and grow. So all राइट। opportunities are like very useful. Like I'm कोडिंग ब्लॉग्स की जहाँ तक बात कर रहे हो, वो मतलब तेरे कुछ कुछ वीडियोस हैं जो अभी भी मतलब दिन के 500,000 व्यूज वगैरह आ रहे होते हैं। वो आई थिंक oh, शायद रिकर्शन के ऊपर, मास्टरिंग रिकर्शन करके काफी काफी फेमस वो है मेरी वीडियो, मतलब वो वीडियो उसकी सबसे वजह से आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो में तेरे को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल में जो लोग देखते हैं दे डेफिनेटली वुड नो यू। उनको ओके। पता होगा कि दीपक भैया आप कोडिंग ब्लॉग्स में और पढ़ाते नहीं है, बट दीपक भैया है कौन, उन सबको पता होगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली जो लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। और यार मतलब अभी मतलब वही लगता है मेरे को कि क्वालिटी कंटेंट जिन्होंने थोड़ा ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझा रखा हो ना, मतलब प्योर इंग्लिश में, और वो भी मतलब अमेरिकन एक्सेंट में समझा रखा है, ऐसे तो मिल जाते हैं, बट वो देसी वाली फील नहीं आती लोगों को कि अपना बंदा समझा रहा है, वो वाली फीलिंग नहीं आती एग्जैक्टली। उस चीज़ में से। तो वैसे या कंटेंट जो कोडिंग ब्लॉग्स में आजकल थोड़े बहुत वी हैव बीन पुटिंग टुगेदर लास्ट 3-4 ईयर से, तो दैट वीडियो हैज बीन देयर। तो यार मतलब पढ़ाना मिस कर रहा है, कितना मिस कर रहा है?
हाँ, आई वुड से येस, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में। आई डेफिनिटली मिस, अभी भी कुछ स्टूडेंट के साथ कनेक्ट में हूँ मैं, तो आई यूजुअली मेंटर देम। राइट। पढ़ाता नहीं हूँ बट आई मेंटर देम, बट येस आई थिंक नियर फ्यूचर में अगर मुझे चांस मिलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, लाइक आई कैन नॉट कॉन्स्टेंटली टीच। बट येस, राइट। अगर मुझे महीने में 2 क्लासेस 3 क्लासेस जैसे, या फॉर्मली पढ़ाना पड़े, तो लाइक आई रियली एंजॉय टीचिंग, शेयरिंग माय स्किल्स विद द पीपल। और राइट। स्टूडेंट के साथ एक बॉन्डिंग भी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो अभी भी एसोसिएटेड है, एंड उनका करियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी वजह से मेरे को भी बहुत कुछ पता चलता है व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। सो राइट। डेफिनेटली टीचिंग इज अ वेरी, लाइक आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी ऑनर्ड प्रोफेशन। सही सही। And it's more like you just code all the day. You just code, you just see the logs. और passive, teaching एक बहुत ही active profession है, तो I राइट। miss it, definitely miss it. राइट राइट राइट। अच्छा तो उसके बारे में थोड़ा सा करते हैं बात। तू कह रहे मेंटरिंग करना लोगों को अच्छा लगता है, जूनियर्स जिसको एडवाइस देना, तो थोड़ी सी जूनियर्स के बिहाफ पे एडवाइस थोड़ा लेता हूँ। जैसे तूने थोड़ा मतलब कुछ लोग जैसे कॉलेज से स्ट्रेट निकलते टाइम पे स्पेशली, अगर थोड़ा एकदम ही टीयर 1 टाइप का कॉलेज होता है तो पॉसिबल भी होता है, और लोग ये तो सोचते हैं कॉलेज से निकलते ही कुछ फैंग वगैरह कंपनीज ट्राई करेंगे। बट देन मैं भी बहुत सारे लोगों को मेंटर करते टाइम भी बोलता हूँ कि देर इज़ ऑल्सो अनदर पाथ, कि तुम कोई स्टार्टअप ज्वाइन करो, फिर तुम धीरे धीरे अपने करियर में ग्रो, 2-3 years हम्म, डाउन द लाइन देन यू कैन लुक फॉर अ बिगर ब्रांड। तो जैसे तूने ये जर्नी एग्जैक्टली वही करी है, तो मतलब इसका कैसा प्रोसेस है? लाइक 2-4 चीज़ें मैं एक साथ ही पूछ लूँगा कि हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दिस, कि अगर 2-3 साल हो गए करियर में तो फिर बड़ी कंपनी में स्विच करने का कैसा प्रोसेस रहता है, किस टाइप के सवाल पूछते हैं, क्या तैयारी बिल्कुल उसी तरह से करनी होती है जैसे कॉलेज से निकलते टाइम करते हैं, यार यहाँ डिफरेंट टाइप की तैयारी होती है, और क्या एक्सपेक्टेशन okay. रहता है जो हायर कर रहे हैं उनको इस चीज़ से? ओके, ओके। सो जो वर्किंग प्रोफेशनल से पहले उनके बारे में बात करते हैं, जैसे जो मैं 2-3 साल जिन्होंने काम कर लिया है, तो हाँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम लाइक आई एम फ्रॉम अ गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली, बट नॉट अ गुड कॉलेज फ्रॉम इंडिया। तो मैं महाराजा अग्रसेन से पढ़ाई की है मैंने। तो वहां पर कोई मतलब फैंग जैसी कंपनी नहीं आती, बट स्टूडेंट्स आर प्रीटी गुड देयर, एनवायरनमेंट इज प्रीटी गुड। सो अगर आप वर्किंग हो, तो जो जितनी प्रोसेस बहुत स्टैंडर्डाइज होता है, लाइक डीएसएलओ के 3 राउंड होंगे और एक सिस्टम डिजाइन का राउंड होगा। तो राइट। डीएसएलओ का राउंड जो हमारे कोडिंग ब्लॉक्स में फाउंडेशन के एंड लेक्चर्स होते हैं, या फिर जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, वो एकदम परफेक्टली सूटेड है। तो और रिकर्जन वगैरह ढंग से पूछते हैं वो लोग। तो अगर आप डीएसएलओ कर लेते हो तो वो 3 राउंड आपके अच्छे हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट। आप एंड देन सिस्टम डिजाइन के लिए आई प्रिपेयर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो आई डिड दैट सिस्टम डिजाइन, ग्रोकिक दी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू हाँ हाँ, कोर्स। काफ़ी बढ़िया और बढ़िया। भी कुछ वेबसाइट्स थी। आई थिंक कोडिंग ब्लॉक्स भी डालने लगेगा सिस्टम डिजाइन के कोर्सेज। डालता है क्या कोडिंग ब्लॉक सिस्टम डिजाइन के कोर्सेज? कोर्स तो मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी बना रखी है, यूट्यूब पे वीडियोस थोड़े से कम है, बट नेक्स्ट कुछ 1-2 महीने में मेरा प्लान है एक्चुअली सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर हाँ, करने के ऊपर। तो ओके। एक्चुअली तो मेरा भी ऐसा है कि मेरे को सिस्टम डिज़ाइन आई ऑल्सो न्यू अ लॉट ऑफ इट थियोरेटिकली, और कोडिंग ब्लॉक जैसे जैसे अभी स्केल हुआ है और थोड़ा सा जोमेटो टारगेट के भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो अब मेरे को लगता है कि यार अब मतलब मैं मेरे को खुद को अच्छे से पता लग गया कि मैं प्रैक्टिकली थियोरेटिकली करना क्या अभी है? अब कॉन्फिडेंटली मेरे को लगता है कि हाँ मैं आगे बोलूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि यार फालतू में फंडे पेल रहा है, मैं एक्चुअली आइडिया है तो मुझे एग्जैक्टली। बनाने का भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक सम। हाँ तो एग्जैक्ट। तो बनेगी उससे। या तो एक सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन करेंगे। ये सिस्टम डिजाइन सिर्फ उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, 3 ईयर एक्सपीरियंस हो गए हैं, 2 साल एक्सपीरियंस हो हाँ। गए हैं। राउंड विच वी मोस्ट ऑफन इग्नोर, हमें लगता है कि यार फुद्दू राउंड है, वहां कुछ जज नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपका टीम सिलेक्शन उसी राउंड से होता है। तो उस राउंड के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपने जो भी आपने अपनी पिछली जर्नी में किया है, नेवर कभी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि यार हमारी कंपनी बेकार है। कोई कंपनी बेकार नहीं होती है। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। यू गेट टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू पुट इट इन द राइट वर्ड्स। करेक्ट। आपको पॉजिटिव देख के अगर आप इफ यू पुट इट दैट वे, तो सामने वाला एम्प्लॉयर भी काफी खुश होता है कि दिस गाय इज एक्चुअली वेरी एंथुसियास्टिक, अच्छे से काम करता है। एंड टेल सम स्टोरीज हाउ यू मैनेज, हाउ यू एक्चुअली वेंट आउट ऑफ योर, ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करी। दैट स्किल इज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट स्किल। तो वो राउंड एक बहुत अच्छा था। बिहेवियरल जाएंगे बहुत अच्छे से कि बिहेवियरल में कि व्हाट इज दी, हाउ डिड यू मेंटर योर इंटर्न्स, और विच प्रोजेक्ट यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग, इस टाइप के राउंड होते हैं।
सो ये 5 राउंड स्टैंडर्ड है, यही पूछते हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, अमेज़न हो, दीज़ आर द स्टैंडर्ड राउंड्स। राइट, सो राइट। इट रियली डज़ नॉट मैटर आप टियर 2 से हो या टियर 1 से हो, वन्स यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस। ये तो द है, ओनली ये तो थिंग है। इज़ मतलब आपको 1-2 कॉल साल मिलना वर्क चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद फिर वो चीज़ ज़्यादा फ़ोकस में रहती है rather than फोकस हो जाती है। राइट। द मेन आई थिंक जो इस टाइप के प्रोफेशनल्स हैं, उनको दिक्कत इंटरव्यू प्रोसेस से ज़्यादा है कि इंटरव्यू का कॉल आ जाए। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ये अच्छा, डिफिकल्ट होता उसके है। लिए कुछ टिप्स मतलब कि क्या करें रेज़्यूमेस, प्रोजेक्ट्स मतलब या फिर आई थिंक कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोग कहते हैं यार तुम बस अप्लाई ज़्यादा जगह करो तो आ जाएंगे कॉल, तो मतलब बहुत सारे अलग-अलग आंसर्स मिले हैं। व्हाट अबाउट यू, मतलब कि यही हो पहुंच जाऊं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? और हाँ, मुझे लगता है कि फैन के इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, लाइक छप्पर फाड़ के देने वाला चीज होता है। होगा तो होगा, होगा, नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज होती है। तो मुझे लगता है कि आपका रिज्यूमे एक्चुअली मैटर करता है, आपको वही कंटेंट लिखना चाहिए जो रेलेवेंट है। एचआर बहुत कम टाइम के लिए आपका रिज्यूमे देखती है, तो जस्ट सी कि मैं अपना रिज्यूमे रिव्यू करवाओ, लाइक जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो आपको लगता है कि यार दीज गाइज आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, उनको जरूर अपना आपको अच्छे टिप्स देंगे। तो रिज्यूमे मैटर, बिकॉज रिज्यूमे स्पीक्स व्हेन यू आर एब्सेंट, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो रिज्यूमे पे काम करो, और अच्छे रेफरेंस लो, मतलब ट्राई टू पुश पीपल, आस्क पीपल कि यार इफ दे कैन रेफर यू, मतलब अगर आप क्वालिफाइड हो तो पीपल विल एक्चुअली रेफर यू, दे राइट, वोंट राइट। हेजिटेट। अगर आप ही क्वालिफाइड नहीं हो तो डेफिनेटली नोबडी वुड वांट टू वेस्ट देयर रेफरल। सो आई मतलब थिंक रिज्यूमे, ये नेटवर्क भी फिर इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे तू कह रहा है कि रेफरल्स वगैरह, डेफिनेटली तो नेटवर्क तेरा इज अभी वेरी फेसबुक इंपॉर्टेंट। का तो रेफरल से नहीं हुआ है, बट अदरवाइज रेफरल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैनल मेरे होता ही बाकी है। जितने भी ऑफर थे वो मोस्टली रेफरल से ही थे। तो ओके। रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट विद मोर पीपल, लाइक ट्राई टू एक्सपैंड योर नेटवर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट। आपको अगर डायरेक्टली रेफरल भी नहीं मिल रहा, दे विल टेल यू सो मेनी थिंग्स जो आप सोच नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। राइट। सो जस्ट टॉक टू द राइट पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, सही। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ी सी पुराने दिन की बातें करते हैं, मतलब ये जर्नी ही प्रोग्रामिंग की, मतलब मेरे को यार काफ़ी कुछ तो पता ही है क्योंकि हम लोग साथ में 2 साल काम ही करे हैं। थैंक यू। और बट फिर भी आई थिंक कॉलेज के टाइम से, मतलब डॉट सी वगैरह के टाइम से यार थोड़ा सा अगर बताएगा कि मतलब कब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, फिर ये पढ़ाना वगैरह मेंटरिंग वगैरह कब स्टार्ट करी, एंड देन फिर कोडिंग ब्लॉक्स, और फिर कोडिंग ब्लॉक्स के बाद क्या क्या किया, तो उसका एक थोड़ा सा रिकैप जो है लोग ओके, देख रहे होंगे। ओके, या श्योर। तो मैंने, वैसे मैं 10th 12 11 12 में मेरे पास मतलब प्रोग्रामिंग कोर्स था, एंड आई वाज लाइक वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग देन। तो मैं मतलब 11 12 में मेरे पास इतनी प्रोग्रामिंग आती थी मुझे, कि मुझे पता था कि हेलो वर्ल्ड कैसे चलता है, डेटा लिंक लिस्ट तक, स्टैक्स तक। एंड देन आई जॉइन कॉलेज, आई मैंने ड्रॉप वगैरह नहीं किया, मैं सीधा कॉलेज में चला गया बिना ड्रॉप किए कुछ। आई वाज नॉट लाइक मुझे आईआईटी जाना है। एंड देन वहां पर मैंने ले ली ईसी, जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की। तो लाइक मैंने ईसी क्यों ली, क्योंकि मैं आईटी नहीं लेना। आईटी क्यों नहीं लेनी, क्योंकि भैया ईसी मुश्किल होती है, तो हम तो मुश्किल चीज करेंगे। तो दैट वो बहुत बड़ी गलती करी मैंने। तो आई वाज लाइक तो मेरी पूरी बीटेक मेरे फ्रेंड्स की वजह से पास हुई है, अगर वो नहीं होते डेफिनेटली मेरी बीटेक नहीं होती। और मेरे पूरे डिपार्टमेंट को पता था कि ये गलत बंदा आ गया है, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं इसी में। तो बट वेरी सून आई रियलाइज कि यार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मुझे खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा, अगर मुझे एक्चुअली डेवलपर बनना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि द ओनर्स ऑफ लर्निंग इज ऑन द कॉलेज। तो मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू किया, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी, मैंने इंस्टीट्यूट से कोर्सेज भी किए। तो आई एक्चुअली डिड अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। सो एज अ पढ़ा भी, एंड देन उस पढ़ने की वजह से मेरा नेटवर्क डेवलप हो गया। आई हैड इंटरेक्शन विद द मेंटर, आई हैड द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। तो अब दूसरा मैं हैकाथॉन में जाने लगा, कोडिंग कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा देने लगा। मेरी खुद की एक टीम थी कॉलेज में जो एसीएम आईसीपीसी तक गई, हम लोग अमृतापुरी गए थे। तो पूरा वो एक, मतलब मेरे को बहुत क्लैरिटी आ गया था कि अगर मुझे कॉलेज में अच्छा करना है तो आई हैव टू एक्चुअली लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम माई सेल्फ। तो आई वुड राइट। से कि एक छोटे कॉलेजेस में दिक्कत ये होती है, यू डोंट नो हाउ टू, लाइक नोबडी नोज हाउ टू प्रोग्राम, तो उस केस में कोडिंग ब्लॉक बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और आपको सही नेटवर्क में जाना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको लगे कि यार यू लर्न बाय सीइंग कि यार ये बंदा ऐसे कोड करता है तो मैं भी ऐसे कोड करूंगा। तो वो मैंने किया, एंड देन आई जस्ट, और फिर एक्चुअली मैं डीटी की कॉन्फ्रेंस में गया था।
तो जब मैं DTQ कॉन्फ्रेंस में गया तो देयर आई मेट प्रतीक. तो प्रतीक इज ऑल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर्स एट फाउंडिंग मेंबर ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स. सो ही इनवाइटेड मी कि दीपक यार तेरी अच्छी है प्रोग्रामिंग, आज आजा कोडिंग ब्लॉक्स में तू पढ़ाना शुरू कर दे. तो मैंने कहा व्हाई नॉट करते हैं. तो देन आई गॉट एसोसिएटेड विद कोडिंग ब्लॉक्स और फिर वहां से तो आपको पता ही है कि कोडिंग ब्लॉक्स एंड देन आफ्टर 1.5 इयर्स आई मूव टू HFT. राइट. तो तो आई थिंक किसी कोई तो शायद वर्कशॉप या कुछ था, मैंने भी कंडक्ट किया था जब मैं आई थिंक कॉलेज के फाइनल ईयर में था, वहाँ पे भी शायद तो था. हाँ, एक बार प्रतीक के साथ. हाँ हाँ, वंस आई मेट प्रतीक, उसके बाद तो मैं काफी, मुझे समझ में आ गया था यार कोडिंग ब्लॉक्स काफी, मतलब कोई वर्कशॉप होती थी तो मैं यूजुअली जाता था वहां पर. आपकी भी मैंने मेरे को काफी इसलिए याद है क्योंकि मतलब यार कभी कभी याद हो जाता है कि यार इसी वर्कशॉप पे मैं गया था और मतलब सब लोग तो बैठ के सुन रहे थे बट इस बंदे ने एक्चुअली सुना था और काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे. मेरे को याद है कि हाँ यार तूने खड़े होकर 3-4 बार सवाल पूछे थे और काफी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल थे कि मतलब हाँ मेरे को लगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअली सोच रहा है इस डायरेक्शन में. और याद नहीं शायद ओपन सोर्स के ऊपर या ऐसी किसी चीज के ओपन ऊपर था सोर्स के वर्कशॉप. ऊपर जी टॉक, आई थिंक वो हाँ, जीसॉक से भी टॉक और थी. तूने मतलब काफी मतलब एकदम ही पॉइंटेड सवाल पूछे थे कि हाँ मतलब ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इस डायरेक्शन में आएगा चले. तो फिर प्रतीक के साथ मैंने आके डिस्कस ही किया था कि यार ये बंदा पूछा था. प्रतीक कहता है हाँ हाँ दीपक करके है, मैंने कहा है कि C++ वगैरह की कोर्स वोर्स पढ़ा सकता है कि नहीं. तो वो तो याद है, तो सही बात है. हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैंने इवन कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू किया था. मतलब अगर आपको मौका मिलता है ना मेंटर करने का तो आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होती है. तो मेरे कॉलेज राइट में राइट. मैंने एक क्लब था .C प्रोग्रामिंग क्लब, उसको सेटअप किया. बहुत क्राउड आता था, लाइक मैं खुद नहीं सोच सकता था वो क्लब इतना सक्सेसफुल हो सकता है. तो एक पॉइंट पर पूरी क्लास पूरी भर जाती थी, लाइक 100 स्टूडेंट्स और सिर्फ कैपेसिटी होती थी 50 बच्चों के बैठने की. उसमें से जो कुछ कुछ बच्चे थे जो काफी समय तक कोडिंग .C के साथ एसोसिएटेड रहे एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड. हाँ आई थिंक तेरे Amazon. ये .C वाले जो तेरे जस्ट अंडर के जो मतलब मेंटीज थे, तो कई कई लोग कोडिंग ब्लॉक्स में एज टीएस, एक दो लोग थोड़े टाइम के लिए मेंटरिंग वेंटरिंग भी किया है कई लोगों ने. तो ओके, तो ओके. डेफिनेटली है. तो हाँ तो ये चीज़ डेफिनेटली मैटर करता है आई थिंक. मतलब मैं अपने कॉलेज में भी सेकंड ईयर से एक ओपन सोर्स SIG करके बना के लोगों के साथ हुँ, सेशंस वगैरह लेता था. तो अभी भी हम लोग जितने भी मेंटर्स वगैरह ऑनबोर्ड करते हैं कोडिंग ब्लॉक्स में, तो अभी भी वही देखते हैं कि यार इन्होंने कोडिंग ब्लॉक से पहले कॉलेज वॉलेज में जस्ट आउट ऑफ पैशन पढ़ा रहे थे कि नहीं, बड़ा क्योंकि वो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ इस बंदे को ना काफ़ी वो है कि मतलब. और इंटरेस्ट है. एक बार पता चल जाती है ये चीज़ ना कि पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी नॉलेज बढ़ती है. तो फिर बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली. इंटरेस्ट लग जाता है कि यार मतलब जब भी मैं नया टॉपिक करूंगा तो एक बार मैं समझ लूँ, फिर मैं आगे अगले बंदे को जाके समझाऊंगा तो उससे नॉलेज और बढ़ेगी. तो वो डेफिनिटली बढ़ती है. मतलब कहीं भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले ना तो मॉनेटरी गेन्स ही देखने चाहिए कि इससे मेरे को मॉनेटरी गेन कितना मिलेगा. लाइक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी कि मॉनेटरी गेन्स एक पॉइंट के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना मैटर करता है. कॉलेज के टाइम पर आपको यू शुड फोकस ऑन द नेटवर्क, यू शुड फोकस ऑन द कम्युनिटी. तो आप वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न आता है, वो इतना ज्यादा होता है आप सोच भी नहीं सकते. हाँ आपके मतलब वो कनेक्शन रेपुटेशन और नेटवर्क जो बिल्डअप हो जाएगा तो मॉनेटरी गेन्स तो एनकैश हो ही जाएगा आगे जाके अपने अपने आप ही एग्जैक्टली. उस चीज में से. राइट, राइट, राइट. वो तो निकलना तो पॉसिबल हो जाएगा. सही तो बात है. ये थी मतलब मेरी 4 साल, साढ़े 4 साल की जर्नी सही इन सही. द कॉलेज. लाइक I associated with the right people. I started mentoring people and I took the onus of learning on myself. तो कॉलेज के ऊपर नहीं था हाँ ये तो कुछ. बहुत है, अपने हाथ में ले लेना काफी इम्पोर्टेंट है. हाँ, अच्छा और एग्जैक्टली. कोडिंग ब्लॉक्स के बाद जाके जैसे ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एक SMC में जैसे तू काम कर रहा था, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब दिस इज समथिंग फिनेंस साइड कंपनीज में जाने का लोग सोचते हैं. और रिंग देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जैसे एनालिस्ट है, क्वांट है, ये सब चीज़ें हैं. लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू कैन गो इन द फाइनेंस डोमेन एज वेल. तो स्पेशली HFT की जहाँ तक बात करते हैं, और मतलब कुछ कुछ कंपनीज एक्चुअली काफ़ी बड़े नाम कर चुके हैं, जो कि मतलब लोग बस सोचते हैं अरे टावर रिसर्च मतलब वो साल में 4-5 लोग ही हायर करते हैं, बट उस चीज़ की वजह से काफ़ी लोगों का वैसे वो भी हो गया है. तो ये HFT का डोमेन मतलब कैसा है, मतलब कि किस ओके, टाइप की चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है और वहाँ क्या लर्निंग रही है. मतलब डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के ऊपर करने को मिला होगा काम तेरे को. डेफिनेटली. तो HFTs पहले तो जिनको नहीं पता, HFTs आर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स. तो वहां पर क्या होता है, पहले बड़े नाम बता देता हूँ कौन कौन से बड़े नाम है. इंडियन नाम्स में एक है टावर रिसर्च, अल्फा ग्रेप, ये दो बहुत बड़े नाम है. ग्रेविटॉन.
और इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो वी हैव जंप ट्रेडिंग, काइंड ऑफ सिटाडेल भी करता है एचएफटी, ये बड़े नाम है। और तो होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ मार्केट में डालेंगे, मार्केट के अंदर हलचल होएगी क्योंकि हमने बहुत सारे ऑर्डर्स डाल दिए हैं, और वो इतना फास्ट होता है कि पे ली और 100 रुपए 10 पैसे पे बेची तो 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ, बट आई विल डू दिस 10 पैसे का ट्रेड मेनी टाइम्स, बहुत बारी करूंगा, 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे, और उसी से मेरा बिजनेस चलता है। तो ये जो 100 रुपए से 100 रुपए 10 पैसे होता है ना, ये बहुत ही छोटे टाइम में होता है, लाइक इट इज इन माइक्रो सेकंड, माइक्रो या मिली सेकंड में होता है काम। तो इनको बनाने के लिए बहुत ही लेटेंसी सेंसिटिव सॉफ्टवेयर बनाने होते थे, तो आई यूज टू कोड इन C++ मोस्टली, C++ एंड पाइथन। तो C++ इसलिए लगते थे क्योंकि उसमें लेटेंसी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती थी, तो आई वर्कड ऑन मेनी थिंग्स, मार्केट अडेप्टर्स, डेटा लेकर आना, देन उसको अपने इंटरनल सिस्टम में राउट कराना, और फिर एक एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करना। तो एज अ डेवलपर अब ऑर्डर प्लेस कब करना है ये डेवलपर को नहीं पता, डेवलपर और एक ऐसे सिस्टम से, एक ऐसे ब्रेन से कनेक्ट करना है जो एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करेगा। तो उसको ऑर्डर इंजन बोल देते हैं। तो ऑर्डर इंजन जो होता है दैट इज मोर लाइक वो क्वांट लिखता है। वो जो बिजनेस गाइज होते हैं वो बताते हैं कि यार जब रेट इतना नीचे जाएगा तो एक ऑर्डर मारना है, जब रेट इतना आएगा तो 500 ऑर्डर मारने हैं। उसी के पैसे तो मिलते हैं क्वांट वाले बंदों को। क्वांट को बहुत पैसा मिलता है, तो डायरेक्टली बिजनेस शेयरिंग होता है, उनका कट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, नंबर्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकता सॉरी, बट हाँ नंबर्स काफी अच्छे होते हैं क्वांट साइड पर। तो क्वांट साइड पे जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटा। और डेवलपर साइड पे एचएफटीज के राउंड्स में डेटा स्ट्रक्चर्स कम पूछते हैं। तो एचएफटीज में मोस्टली दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी वेरी डिटेल्ड, लाइक आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही डिटेल में, लाइक थ्रेडिंग क्या नहीं पूछते, वो थ्रेडिंग और मेमोरी बहुत ज्यादा रहता है, नेटवर्क कार्ड्स, आई माई सेल्फ रोट अ निक ड्राइवर। तो इतना ज्यादा होता है कि आपको इतना घुस घुस के होता है। उसके बाद देन यू हैव टू थ्रेडिंग बहुत पूछते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत पूछते हैं, कैशिंग बहुत पूछते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। तो इसमें दैट जिन इज लोगों का इंटरेस्ट है वो लोग सोच सकते हैं इस डायरेक्शन में। डेफिनेटली कई लोग हैं जो लैंग्वेज के लो लेवल में घुसने में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉइंटर्स वॉइंटर्स के लेवल में घुसने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों का आएगा, मजा आएगा इस चीज में। उनको बहुत मजा आएगा, उनके लिए एचएफटी से बेटर कुछ नहीं है। आई वुड से कि आपको बेस्ट हार्डवेयर मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट नेटवर्क स्पीड मिलेगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा चीजों पे काम करते हो। लाइक मैंने क्या नहीं किया, बिल्कुल लो लेवल से लो लेवल तक काम किया, पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड्स तक बनाए हैं, लाइक आई एक्चुअली रोड द यूआईज एज वेल, देन आई वर्क विद इंटर्न्स, आई वर्क विद द बिजनेस गाइज, आई वर्क विद फाउंडर्स। तो या तो पूरा ब्रेड्थ बहुत ज्यादा मिली है, ब्रेड्थ के साथ साथ कुछ जगहों पर बहुत डेप्थ भी मिली है। तो दिस हैपेंस इन अ स्टार्टअप ओनली आई वुड से, क्योंकि बाकी जो मेरे अच्छी जगह पर है फ्रेंड्स, उन लोगों को इतना बड़ी कंपनी में इतने ज्यादा चीजों पे काम करने को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो बट एचएफटी इज अ गुड स्पेस इफ यू आर लाइक, इफ यू आर डेडिकेटेडली, इफ यू वांट टू वर्क डेडिकेटेडली, काम बहुत ज्यादा होता है, लाइक यू आर गोइंग, यू आपकी लाइफ में सिर्फ वर्क रहेगा, नो लाइफ टाइप हो जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस प्लस नहीं है, बट हाँ अगर एक्सपीरियंस करना है तो आई वुड सजेस्ट, बहुत अच्छा डोमेन है। सही सही सही। ये तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारी चीज़ें, लोगों को पढ़ाना, फिर लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना, और अब इवन जो मैं स्केल दिख रहा होगा ये तो अलग ही लेवल का दिख रहा होगा। तो इसके बारे में तो मैं इनफैक्ट कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, आई वुड लव टू सिट डाउन विथ यू वंस अगेन। अभी तो मतलब तू समझ ही रहा होगा सिस्टम को, बट एग्जैक्ट, अभी तो 21 दिन ही हुआ है, 21 ऑनेस्टली दिन ही बोलूं हुआ तो है। 21 दिन। हाँ। तो तो मे बी सम 5-6 months लेटर वी कैन सिट डाउन हम्म। अगेन, फिर भी तू बता सकता है कि भाई तुमने फेसबुक में वो बटन देखा है, वो भाई ने बनाया, तो ऐसा भी लेवल हो सके। नहीं तो एक्चुअली जब तुम्हें पता है वो अंकित थे, अंकित मलिक करके थे, हाँ, तो उन्होंने रिएक्ट की या कोडिंग क्लास मिली थी, तो ही हैड वर्कड एट फेसबुक बिफोर, फेसबुक। लॉन्ग टाइम बिफोर। तो वो ये कहते थे कि मतलब रिएक्ट जब बनना स्टार्ट हुआ था फेसबुक के अंदर, तो उसका नाम तब रिएक्ट नहीं था। लोग जैसे चैट के लिए कंपोनेंट बना लेते थे, साइड बार के लिए कंपोनेंट बना देते थे, तो वैसे कंपोनेंट्स ही कहते थे उसको वो लोग। तो तब के टाइम पे वो थे, तो वो मतलब अपने एक्सपीरियंस बोलते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था सुनने में कि हम कंपोनेंट वाले फ्रेमवर्क के शुरुआत में काम किया है। फिर मैंने फेसबुक छोड़ दिया, बाद में पता चला कि वो धीरे धीरे रिएक्ट नाम से फ्रेमवर्क के फॉर्म में वो बन गया आगे चल में के। आ गया।
तो हाँ। हाँ, नहीं फेसबुक में ओपन सोर्स को एक्चुअली बहुत ही वो करते हैं, लाइक मैं अपनी कंपनी के लैपटॉप पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो दे एक्चुअली प्रमोट दिस काइंड ऑफ कल्चर। तो हाँ। फेसबुक में चीजें बहुत ज्यादा है, लाइक इतना कुछ देखने को मिला है मुझे विद इन दी पास्ट 21 डेज जो मैं सोच नहीं सकता था। इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डोमेन। मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता हूँ ड्यू टू पॉलिसीज, ऑफ लेकिन कोर्स सही बात है। हाँ, लेकिन काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लाइक दे आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज पॉसिबली द फ्यूचर। सही सही सही। तो तो वो है, हाँ डेफिनेटली हम लोग 6 महीने बाद मैं तो चाहूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हाँ मतलब, और चीजें बना के एक बार मतलब वेबसाइट पे लॉन्च हो जाती है तो फिर मतलब यूजर फेसिंग फीचर्स तो फिर बताना भी पॉसिबल होता है, तो व्हेन दैट हैपेंस तो तब एक बार। और ऊपर से थोड़ा क्या कहते हैं, अभी तूने वो वीडियो भेजी थी अपने इस गलियारों की, तो वो भी मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा इसके अंदर। बट फिर ओके, विंटर्स में जब वहाँ सब कुछ सफ़ेद हो चुका होगा ना, तो तब की भी कुछ नज़ारे वगैरह साथ में कंपाइल करके बिल्कुल। विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो। जब विंटर्स में ना एकदम बर्फ बर्फ हो जाए तो उस टाइम का विल मेक वन। बट हाँ मतलब डेफिनेटली ये मैं तो जहाँ जो। घूमूंगा मैं कोशिश करूंगा एक 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 छोटी सी क्लिप मैं ऑडियंस के लिए रखूँ, कोडिंग क्लास को दे दूंगा। तो अगर श्योर श्योर। ये भी एडवेंचरस करेंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर, लाइक आई विल बी वेरी ग्लैड। पक्का तो पक्का। और जब क्या कहते हैं ये टूरिस्ट वीज़ास वगैरह बनने लगे तो आता हूँ मैं भी। अभी तो वो लोग थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ास एंड ऑल। और एग्जैक्टली सही भी बात, आई थिंक यूके इंडिया दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ नंबर्स तो बढ़े जा रहे हैं। यहाँ ज़्यादा हो रहा है दोनों ही यूके में। दोनों जगह रिस्की है। हाँ, तो बट बहुत हाँ, कुछ वैक्सीन वैक्सीन बने या जो भी थोड़ा टूरिस्ट वीज़ा वगैरह कुछ बनने लगे तो आते हैं फिर। शायद ट्रैवल व्लॉग वगैरह कर सकते हैं साथ में चलते हुए वेल्स वगैरह घूमते बिल्कुल। हुए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को भी यहाँ पर ये मेरा एक एम है कि बहुत घूमना है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घूमा नहीं है इंटरनेशनली, तो हाँ, मेरे को करना है वो चीज़ टुगेदर, लाइक बहुत मज़ा आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, दूसरे हाँ, वाले या कॉल पे ओके। जाना है। ओके हाँ, चल, बाय। बाय-बाय। मैं यहाँ बाय। करता हूँ।